Hello friends, good evening. Today we will start our new topic, optics. New unit you could say, right? And in optics you might have heard that few topics are now cancelled for this year especially. So but this optics is divided into two parts. Part 1 is ray optics. And another part is wave optics, right? In this ray optics, what we have, in ray optics what we were having, reflection, refraction, refraction and spherical surface, right? Lensmaker's formula. Spherical lenses. Prism. And what we have? Scattering, dispersion, compound microscope, and astronomical telescope. These are the topics which we have to go through. Now this topic has been cancelled for this year, though we have read this in class 10th, so no need to worry about it, but these topics will be there. And in terms of wave optics, what we have? Interference and second is diffraction. Light. Earlier on polarization was there, but this year this has been deleted, though we will talk about it, polarization. So these are the topics, few topics which we have to talk about, right, in this particular unit. So we will start with refraction only. We will not talk about reflection. Right? Our topic in optics, we will begin with refraction of light. Before going to the topic, let's talk about basic about this topic, right? Generally, what we have read up till now, the velocity of light in free space, that is air or vacuum, is maximum, right? We denote it with C, and the value of C is 3 into 10 to the power 8 meter per second, right? Why we are talking about that? It simply means the velocity of light in air or vacuum is maximum. That means in other medium it will be less than that, right? The velocity of light in other medium other than this air or vacuum, let it be V. This V will always be less than C, right? It means light travels with different velocity in different medium, right?
if I say velocity of light in water, right, it is 2.25 in 10 to the power 8 meter per second. Velocity of light in glass, it comes out to be somewhere 2 into 10 to the power 8 meter per second, right? The different medium will have different velocity of light. We'll conclude it with velocity of light in different medium is different. This is the basic conclusion, right? Based on this velocity differentiation, what we define, very popular quantity in this ray optics is refractive index of a medium. We denote it with mu, right? So how to define it? So refractive index of a medium is defined as the ratio of velocity of light in free space. Free space means what? Air or vacuum. Remember these two words, air or vacuum. We use a common word, free space, and vacuum it is W, never double C, vacuum, right? In terms of formula, what we got, refractive index of a medium is simply C via velocity of light in the medium, right? C via V we call it, right? What about its unit? Remember, this is the ratio of velocity, so no unit, right? It will be a number only. Refractive index has no unit. Sometimes they do ask, keep in mind it is C upon V, right? So if I say velocity of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, what will be the refractive index of that glass, right? So this is given and C is always there. C is what? 3 into 10 to the power 8 meter per second. So what will be mu according to our formula? It was C upon V. 3 into 10 to the power 8 via 2 into 10 to the power 8. So we left with 3 via 2 or 1.5. It means refractive index of glass. Refractive index of glass is 1.5, or in terms of ratio it is 3 by 2. Same way, if you want to calculate refractive index of water, what it will be? C via V in water. C we have got fixed 3 into 10 to the power 8 meter per second via water, this is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, right? So what we have got, 300 via 225. If you don't know the basic, do like this. No need to make any hale-bale, right? So 75, if you can do 4 and it is 3, otherwise you do the basic 4 by 3. The refractive index of water will be 4 by 3. This is the ratio of 1.33, or in terms of decimal value it will be 4 by 3 and 1.33. So from this what we are getting, as the velocity of light in different medium is different, so they will have different refractive index. By using this, what will be the refractive index of air or refractive index of vacuum? Formula says C via V, right? So here in this case V is what? Again air or vacuum. So it will be C via C, right? That is 1.
In 1 marks question they do ask refractive index of air or vacuum is 1, right, and other will have higher refractive index. So that's how the velocity varies with respect to medium. This is the basic part of this one while dealing with refraction. Then we have density term, right? Generally light is passing through different medium, means a medium will be either denser or rarer with respect to each other. As we are saying, velocity of light is different. Why it is different? That depends on the density of the medium, right? A solid is denser with respect to liquid or gas. A liquid is denser with respect to gas, but will be rarer with respect to solid, right? It simply depends on the density. As the different medium has different density, so they will either be denser or rarer with respect to each other, right? So due to the different density, medium are denser or rarer, right? So what we have got, mediums are of different density, so the velocity of light is different. Now what will happen? What will be the consequence of these two factors? We are dealing with optics, and in optics the basic phenomena is refraction of light. As we did talk about that the velocity of light in different medium is different, and the mediums are also different with respect to each other. They may be rarer or denser. So what is found that when a light ray, suppose this is medium number 1, this is medium 2, right, passes from one medium to another medium. Look at here it is changing the medium. If nothing would have happened, it simply would pass like this. This is called actual path. Actual path. But it never happens due to this change of medium. What happens? This incident ray, after entering in the second medium, either bends towards the normal, either I am saying because two probabilities are there, or it may go away from the normal, and these rays are known as refracted ray. Refracted ray, right? मीन्स जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, नॉर्मल मीन्स जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, या नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। अब सवाल उठता है कब नज़दीक आएगा, कब दूर जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, आपने 10 में भी किया है। सपोज पहला मीडियम रेयरर है और दूसरा डेंसर, जैसे एयर ले लें और ग्लास ले लें। तो ये एयर से आ रही है लाइट रे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज इंसिडेंट रे। Practically it is found that in this case when light ray passes from rarer to denser, the refracted ray bends towards the normal. ये इधर को आ जाती है रिफ्रैक्टेड के लिए,
ये है रिफ्रैक्टेड रे, राइट। यानी क्लियर है, रेयर से यदि हम डेंसर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, लाइट रे विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसी को हम देखें, यदि हम पहला मीडियम डेंसर ले लें, दूसरा रेयरर, तब क्या हो, लाइट रे हमने ये पास ऑन करी, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस इंसिडेंट रे एंड दिस इज द एक्चुअल पाथ, मीन्स जहाँ जाना चाहिए था बिना डेविएशन के। लेकिन हुआ क्या, इसमें क्या होता है, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाती है, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे ये बनती है, राइट साहब। तो याद रखिए, डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। अब है क्या रिफ्रैक्शन फिर, तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। लाइट रे यदि चेंज ऑफ मीडियम नहीं होता तो सीधे सीधे चले जाता, लेकिन हो क्या रहा है, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड के चले जा रहा है, नॉर्मल से दूर चले जा रहा है। तो सिंपल सा कहेंगे कि व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then it either bends towards the normal or goes away from the normal, depends on the conditions, right? This phenomena of deviation of light ray from its actual path, किसकी वजह से, due to change of medium, क्या हुआ, velocity change हुई, is known as refraction, right? The phenomena of light in which a light ray deviates from its actual path, right, due to change of medium, ठीक साहब, is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ भी नहीं है, 10th में खूब रटा हुआ आप लोगों ने, राइट साहब। ये है स्पेशल केसेस दिया, स्पेशल केस, ये हमेशा याद रखिए, इसको पूछता है। Here I've got two different medium, medium 1, medium 2, velocity of light भी अलग अलग है, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है। अब किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, राइट, चेंज ऑफ मीडियम भी है। इफ द लाइट इज पास नॉर्मली, लुक दिस बिकम्स द इंसिडेंट रे, राइट, and then there will be no refraction, this will be the refracted ray, right. In this case, if I say what will be I, angle of incidence will be 0 and R will be 0. In this case there will be no refraction, remember, मीडियम चेंज हो रहा है उसके बावजूद कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, राइट, नो रिफ्रैक्शन। तो हमेशा याद रखिए, फॉर नॉर्मल पूछता है, for normal incidence, याद रखना इस वर्ड को, there is no refraction, ठीक है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, ठीक। लाइट जिस पाथ पे आ रही थी उसी पाथ पे नीचे निकल जाएगी। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में जो ऐसा हो रहा हो? हाँ, यदि आपने देखा होगा, एक फ्लेमिंगो होता है बर्ड, इस तरह से उसकी बीक होती है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ अब इतना बढ़िया फ्लेमिंगो मेरे बस का तो नहीं है बना, लेकिन आप बनाओ, ये है फ्लेमिंगो का बीक। अब इसका जो इंसिडेंस है, ये जो आँख है एक्चुअली में, ये बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस पे आएगी। तो होता क्या है, मछली जहाँ थी इसको वहीं देखेगी, अरे भाई सही ढंग से मछली मार लेता है।
ये एक नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ये बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आ जाता है। ठीक है, इसको मछली खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। फ्लेमिंगो यदि आपने सही देखा हो, केन देखा हो, हिंदी में सारस बोलते हैं, कुछ इस तरह से इनकी बीक होती है कि वो नॉर्मल इंसिडेंस पे आ जाती है। इससे भी बढ़िया आपने गांव के मेले में देखा होगा, एक बाल्टी लेता है, इस तरह से बाल्टी या टब कुछ भी रखा हो, इसके बेस में एक बॉक्स रख देता है एक, राइट, इस तरह से इसमें पानी भर देता है या लिक्विड कुछ भी भर देगा, कलर्ड पानी। यहाँ से कहता है कॉइन ड्रॉप करो, 1 रुपये कॉइन, इसको ड्रॉप करना है। तो यदि आपने फिजिक्स पढ़ी है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आ जाइए, अपने आप को बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइए इसके आँख के। 99 टाइम्स कुछ नहीं होगा, बिल्कुल पानी में जहाँ जाना है वहीं जाएगा। ये I = R = 0 नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ आपको मैं, राइट। गांव में अक्सर मेलों में लगता है फेट में, ₹1 के कॉइन को ड्रॉप करना है, तो आपको अपनी आँख को बिल्कुल उसके नॉर्मल लाना होगा और ड्रॉप कर दो खड़े में, चपटे में नहीं, खड़े में करना होता है ऐसे में। यदि आप चपटा करेंगे तो कई सारे पाथ आ जाएंगे, तो डेविएट हो जाएगा। खड़े में इसको ड्रॉप करना है, 99% ये इसके अंदर जाएगा। इट इज़ एन ऑब्जर्व फैक्ट। बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है नो रिफ्रैक्शन का। अब इस रिफ्रैक्शन को थोड़ा मैथमेटिकली और करें, क्या है क्या नहीं है। ये हमने नाम दिया इंसिडेंट रे, ये हमने नॉर्मल लिखा, रिफ्रैक्टर लिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर है, तो कुछ डिफाइन किए जाते हैं लॉज। एक तरह से रिकैप है, आपने जो 10th में पढ़ा है उसका रिकैप है। कितना पढ़ा, वहाँ खाली गोटा था, यहाँ प्रैक्टिकली देखना है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साहब 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, कुछ नहीं, इन द फिनोमिना, इस फिनोमिना को लिखना सीखो भाई 12th में, फिनोमिना लिखा जाता है ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल and the refracted ray must lie on the same plane। ये तो बहुत सिंपल सा लॉ है, सभी को याद रहता है, याद भी आ रहा होगा। ठीक, अब है सेकेंड लॉ, पॉपुलरली नोन है स्नेल्स लॉ। याद रखिए, अलग नहीं है, स्नेल्स लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ पूछ लेता है कई बार। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ साइन लिख देते हैं, रुक जाओ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, लिखते हैं SIN ही है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग SIN लिखते हैं, साइन आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना भूल गए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज sin R is always a constant। राइट, क्या मतलब है साहब, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। कहता है जो ये साइन I है बाया साइन R, ये कांस्टेंट आएगा,
राइट। लकीली ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है, किसका? याद रखिए, सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, या यूँ लिख सकते हैं जिसको नहीं आता μ2 बाय μ1। ठीक, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, बाय चांस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आती है। तो याद रखिए ये डेफिनेशन कतई नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो साइन आई बाय साइन आर, मैथमेटिकली कम्स आउट टू बी लाइक दैट, राइट। सो इसको कभी भी डेफिनेशन से समझने की भूल ना करें। साइन आई बाय साइन आर इज 1 μ2। 1 μ2 का मतलब क्या हो गया, इसको पढ़ना भी सीखें। 1 μ2 का मतलब होता है, पीछे से पढ़ते हैं इसको, आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस मीडियम में गया, सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, राइट। इसी को उल्टा कर दें, 2 μ1 लिख दें, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, आर आई ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, इस तरह से, राइट। अब हम कह रहे हैं कि भैया चांस है कि वो उसके बराबर आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसको कहीं भी डिफाइन उस बेसिस पे ना करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन C/V ही रहेगा। इसको कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, जैसे यदि फर्स्ट मीडियम मेरे पास एयर है, दूसरा ग्लास है, तो ये क्या बनेगा, क्योंकि सेकंड में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर फर्स्ट था, तो ये आएगा a μg इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक, इसी को मैं ऐसा कर दूं, ये हो जाए ग्लास और ये हो जाए एयर। ठीक है, डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो दूर भागेगा, थोड़ा सा इधर भगा दिया जी हमने, ये लो, ये आर और ये आई। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास होगा वो आएगा आपके पास साइन आई बाय साइन आर। तो याद रखिए चेंज ऑफ मीडियम को भी। अब इसी में करके देखूं मैं, एक थ्योरम ऑफ रिवर्सिबिलिटी आती है, इसी डायग्राम को लूँ ऐसे करके और पाथ बदल दूँ, रिवर्स कर दूँ पाथ को, यानी जिस एंगल से हमने इंसिडेंट किया था ये वाला, ये जो आर लिया था इसको माने हम लोग इंसिडेंट, उल्टा कर दिया। अब दोबारा बनाएंगे दोनों डायग्राम, इंसिडेंट रे, तो ये क्या होगा, उसी एंगल से बाहर चला जाएगा, मीडियम से दूर भाग जाएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड। ठीक, हमने केवल पाथ बदला, एंगल नहीं, तो ये भी आई से ही बाहर आएगा। अब क्या हो गया, ये तो है साफ ग्लास और ये है एयर। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में। पहले केस में यहाँ देख लो, केस 1 में क्या हो रहा है, लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो a म्यू जी आ जा रहा है साइन आई बाय साइन आर। यही चीज़ हम केस 2 में देखें, हमने क्या किया, वी सिंपली रिवर्स द पाथ, इंसिडेंट को बना दिया रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड बना दिया इंसिडेंट, राइट। तब क्या होगा, किसका आएगा, कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, कहाँ से आ रही है, ग्लास में आ रही है, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखिए अब की बार कितना है, आर, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो आई हो जाएगी, हमने उल्टा कर दिया पाथ। अब इसको ढंग से देखें तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 1/sin आई बाय साइन आर, तो ये जी म्यू ए क्या आ जाएगा, 1/a म्यू जी, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सिंपल। यानी a म्यू जी यदि मुझे पता है 3/2 है तो जी म्यू ए उसका उल्टा हो जाएगा 2/3। इसी को कहते हैं थ्योरम ऑफ रिवर्सिबिलिटी, राइट। कई जगह इसको लिखा जाता है थ्योरम ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी आप पाथ बदल दीजिए साहब,
ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक, ये है रिफ्रैक्शन, क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, क्या लॉज है, राइट। इसी में यदि मैं 3 डिफरेंट मीडियम ले लूँ, देखो, ठीक है, ये एयर ले लिया, ये कुछ भी ले लो, वाटर ले लो, ग्लास ले लो, ग्लास चलो, और ये वाटर ले लिया, यहाँ से लाइट रे पास कराई, ठीक साहब, एयर से ग्लास में आ रही है, यानी रेयरर से डेंसर में जा रही है, ये हमने लाइट रे दी थी, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल की और बेंड हो गया, इसको हमने आई कह दिया, इसको R1 कह दिया। अब हम यहाँ पर बेंड ड्रॉ करें, अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, ग्लास से वाटर में जा रहा है, यानी ग्लास कैसा हो गया, वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसर हो गया, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो दूर चला जाएगा ऐसे। फिर यहाँ ले लें, वाटर से फिर एयर में आ रहा है, डेंसर से रेयर में आ रहा है, तो क्या होगा, फिर दूर भाग जाएगा, सब उसको यहाँ निकल गया इस तरह से। TI, ये भी R1, इसको R2 बोलें, ये भी R2 आ जाएगा, और ये E होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, और प्रैक्टिकली इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू I। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला कई बार बन जाता है, A म्यू Z इंटू G म्यू W इंटू W म्यू A। बिल्कुल जहाँ से गए थे फिर वापस उसी पे, जहाँ से गए फिर वापस, ये हमेशा 1 आता है, राइट। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपसे तब भी नहीं हो रहा है तो आप ये देखिए, याद रखना A म्यू W का होता है म्यू ऑफ W बाया म्यू ऑफ एयर, सिंपल, राइट। और A म्यू G की बात मैं कर रहा हूँ, तो म्यू ऑफ G बाया म्यू ऑफ A। अब मैं इसे कह दूँ G म्यू W, इसका मतलब होता है म्यू ऑफ W, जो ऊपर सेकंड पार्ट है वो पहले, बाया म्यू G। ये याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल में, ये सब थ्योरम ऑफ रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट हैं, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि फॉर ए नॉर्मल इंसिडेंस, यदि भले मीडियम चेंज हो रहा हो, दिस इज़ मीडियम 1, दिस इज़ मीडियम 2, लाइट रे यदि नॉर्मल में इंसिडेंट करा रहे हैं हम लोग, तो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। मैंने तब भी आपको कहा था, आज भी बोल रहा हूँ, I is 0, R is 0, नो रिफ्रैक्शन। ये बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वो पूछता है कि देखो चेंज ऑफ मीडियम भी हो रहा है, उसके बावजूद रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो किसके लिए पॉसिबल है? फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए भी थे, केन है, फ्लेमिंगो है, राइट। इनकी बीक इस तरह से होती है कि इनको एग्जैक्ट वहीं दिखता है, नॉर्मल इंसिडेंस पे दिखता है, राइट। मीलों में भी आपने देखा होगा, बकेट वाला बताया था हमने, वो सब हो गया है। इसी तरह से कई एग्जाम्पल हैं रिफ्रैक्शन के। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि 10th में किए हुए हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे चमकते नहीं हैं साहब, झिलमिलाते हैं। व्हाट डज इट मीन्स तारे की जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं है, वो पोजीशन हमेशा हिलती रहती है, उसका हिलना ही अपने आप में क्या कहलाता है? ट्विंकलिंग। छोटे से पढ़ते आए हैं पोएम, ट्विंकलिंग ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। अब हो क्या रहा है, लाइट रे जब स्टार तो बहुत काफ़ी डिस्टेंस पर है तो डिफरेंट लेयर्स को पास करके आता है। हो सकता है ये वाली लेयर नीचे वाली लेयर के रेस्पेक्ट में डेंसर रेयर हो, ये वाला डेंसर हो, ये वाला फिर डेंसर हो, फिर रेयर हो, यानी डेंसिटी वेरी करती रहती है। तो लाइट यदि यहाँ से आ रही है इस स्टार से, ये हम मान के चलें ये आ रही है लाइट, राइट। तो डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो क्या होगा, ये दूर भाग जाएगा ऐसे, ठीक। फिर रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तब की बार बेंड कर जाएगा। फिर डेंसर टू डेंस, सपोज करो ये रेयरर है तो क्या होगा, ये फिर दूर भाग जाएगा, राइट। अब ऑब्जर्वर आप यहाँ खड़े हैं, ये है ऑब्जर्वर हमारा, तो उसको कभी तो लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है, कभी लग रहा है यहाँ से आ रही, कभी लग रहा है इधर से, उल्टा उल्टा लाइट, मीन्स रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, राइट, तारे ट्विंकल करते हैं साहब, झिलमिलाते नहीं, झिलमिलाते हैं, चमकते नहीं है, ठीक है।
क्योंकि अलग अलग डेंसिटी है, लाइट रे अपना पाथ लगातार बदलती रहती है, तो ऑब्जर्वर को लगता है वो हिल रहा है। ठीक है, अब कई हैं आप लोगों ने पढ़े हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उस पर, मैं सीधे अपने टॉपिक पे आऊँ। क्या टॉपिक है साहब? हम बात कर रहे थे लाइट रे, मैं नीचे ले रहा हूँ डेंसर से रेयरर, ये है मेरे पास। ठीक, ये पास की मैंने डेंसर से रेयरर, तो होना क्या चाहिए? इट मस्ट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इधर आ जाएगा। ठीक, मैं इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दूं, ये कर दूं ऐसे, तो ये थोड़ा और बेंड कर जाएगा। राइट, एक पर्टिकुलर एंगल पे बजाय उधर जाने के वो इधर ही आ जाएगा ये। राइट, यानी इस पर्टिकुलर थर्ड वन के लिए ये आर कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक, और ये जो एंगल लिया हमने क्रिटिकल एंगल, ये वाला आईसी, वो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल आईसी। राइट, तो इसमें एक बहुत खूबसूरत फिनोमेना बनता है, इसलिए पहले हम डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल। याद रखिए हमेशा डेंसर मीडियम का होता है, रेयर का नहीं। इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ कई बार कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, पता ही नहीं चलता है, आप लोग बता रहा क्रिटिकल एंगल डेंसर निकाल लो। तो क्रिटिकल एंगल कौन सा होगा? हमने क्या कहा था? पहले वालों में कुछ नहीं हो रहा था, एट आई इज इक्वल टू आई सी, जैसे ही हम पहुँचे आर क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। राइट, तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम, मीडियम क्या होगा? हमारा डेंसर ही होना है, इज डिफाइंड एज that angle of incidence for which the angle of refraction, ये याद रखना ढंग से, angle of refraction becomes 90 degree, becomes 90 degree। ठीक है साहब, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने तो स्नेल्स लॉ पढ़ा था। लाइट रे को डेंसर से रेयरर में डाला था, तो इसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रेस्पेक्ट टू डेंसर क्या आएगा? स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाया साइन आर। ठीक, अब मेरे पास आई क्या है? आई को तो मैं साइन आई सी कह रहा हूँ, और आर कितना है? साइन 90। राइट, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है? यहाँ ध्यान देना, ये आ रहा है किसका? रेयरर का, डेंसर के रेस्पेक्ट पर। एंगल किसका है? डेंसर का। तो याद रखिए थ्योरम ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर क्या होगा? 1 हो जाता है जे म्यू आर, तो ये आ जाएगा 1 साइन आई सी। आप लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, ढंग से देखिए पूछ क्या रहा है। वो सवाल डालता है सिंपल सा कि भैया आई सी है 60 डिग्री। राइट, वो पूछ कह देगा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। राइट, तो कुछ नहीं सोचना है, वो सब डेंसर के लिए है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ही निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर क्या बताया? 1 साइन आई सी। एक नंबर में पक्का मिलना है इसमें, तो 1 साइन 60 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3। ठीक है, तो सवाल काफ़ी चलता है, तो दिमाग में हमेशा याद रखिए क्रिटिकल एंगल डेंसर का होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डेंसर का निकलेगा, तो 1 करके निकलेगा। एक बार बहुत पहले उन्होंने दिया था, 2 उन्होंने कहा रेयरर का निकाल, तो रेयरर का निकालना तो साहब साइन ऐसी आएगा, उल्टा नहीं होगा। तो थोड़ा सवाल को पढ़ना भी सीखिए, इंटरप्रेट करना बहुत बड़ी बात है। अब क्यों पढ़ा हमने भैया, क्यों कर रहे हैं हम इस क्रिटिकल एंगल जो है?
अब देखो इसका एक और बहुत खूबसूरत फिनोमेना है, वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में रखनी है कि भैया ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन की ही एक प्रॉपर्टी है, राइट। तो याद रखिए, कई बार अच्छे से एग्जाम पूछा जाता है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्यों लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन भाई, रिफ्लेक्शन क्यों लिख रहे हैं? अब देखो मैं उसी चीज़ को चेंज करता हूँ। ये हमने लिया था, हम नीचे डेंसर ले रहे हैं, ऊपर रेयर ले रहे हैं, अपने अपने हाथ का ऊपर बना लो। ठीक, ये मेरे पास क्रिटिकल एंगल आ गया, मतलब इस पर्टिकुलर एंगल पे वो यहाँ आ जा रहा है, R 90 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करूँ, इफ़ आई इंक्रीज द एंगल ए बिट, तो थोड़ा सा बढ़ा दूँ, आई कर दूँ ग्रेटर देन IC, तब क्या होगा साहब, कायदे अनुसार तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, उधर जाना चाहिए था, लेकिन उधर का तो रास्ता बंद हो गया, यहाँ तक तो वो पहुँच ही गया, तो बजाय उधर जाने के ये वापस उसी मीडियम में आ जाता है। इसी को बोलते हैं TIR, बहुत खूबसूरत चीज़ है TIR। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, रिफ्रैक्शन हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक, तो कैसे डिफाइन करें, सिंपल सी बात आपको दिख ही रहा है, डायग्राम से देख लो। व्हेन ए लाइट रे passes from a denser medium to a rarer medium, याद रखिए ये केवल इसी में होगा, डेंसर टू रेयर में, at an angle greater than the critical angle of the medium, then the light ray, instead of going into other medium, it reflects back in the same medium। ठीक साहब, this phenomena is known as टोटल इंटरनल क्या रिफ्लेक्शन। बार बार आगाह कर रहा हूँ, भले रिफ्लेक्शन लिखते हैं लेकिन एक रिफ्रैक्शन की ही एक कैरेक्टरिस्टिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, अक्सर पूछ लेता है कंडीशन फॉर TIR, तो साफ दिख रही दो कंडीशन है। पहले क्या हमने कहा था, केवल डेंसर से रेयरर के लिए होगा, लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, पहली कंडीशन थी ये है। उसके बाद दूसरी कंडीशन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल I मस्ट बी ग्रेटर देन IC, लिख भी दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी क्या
greater than the critical angle। बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है।